Good morning, students. Today we will study about the multiplication theorem of probability and about independent events. So let us first see what is multiplication theorem of probability. Suppose we have two events E and F, then the conditional probability of E given F, it is given by probability E intersection F divided by probability of F. This we have studied in earlier class, previous class. So from here we can write probability of E intersection F as probability of F multiplied by probability of E given F has happened. Now we also know that probability of F given E, it is equal to probability F intersection E divided by probability of E, or it can be written as probability E intersection F divided by PE. Now from here also we can have probability E intersection F is as probability of E into probability of F given E has happened. This is called, the first and second one, it is called the multiplication rule of probability. If we have three events, then this multiplication rule of probability can be written as probability E intersection F intersection G is equal to probability of E into probability of F given E multiplied by probability of G given E and F has happened, means E intersection F. Sometimes E intersection F is written as EF, so we can replace it by EF. Now, independent events. If the probability of occurrence of one event is not affected by the occurrence of other event, then the two events they are called independent events. अगर एक इवेंट के होने या न होने से तो किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उन दोनों इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे. कभी कभी कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स से कंफ्यूज होते हैं. जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते, वहाँ हम उसको इवेंट्स की टर्म्स में ही बात करते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स whose intersection is phi, means they do not have any common element, or we can say that one event excludes the happening of other event. लेकिन यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जब बात करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर probability of f given E is same as probability of f, means E के होने या ना होने से f की probability पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या f के होने या ना होने से E की probability पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, means probability E given f is PE, then also we can say that E and f are independent events. Now by the multiplication rule of probability, probability E intersection F is probability of E into probability F given E, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है. लेकिन probability अगर E और F independent events हैं तो probability F given E is same as probability of F, so we can replace it by this. So we can also define independent events as E, the events E and F are two events associated with the same random experiments, then they are independent if probability of E intersection F is equal to probability of E multiplied by probability of F. So let us see a question based on it. Two cards, they are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards they are black. 52 कार्ड्स के पैक में से हमने दो कार्ड्स निकाले, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाला फिर उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको वापस नहीं डाला,
एक कार्ड निकालने के बाद जो 51 कार्ड्स रह गए उसमें से फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, तो हमें ये बताना है कि इसकी क्या प्रॉबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स हमारे ब्लैक हों। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो हमने पहले इन दोनों इवेंट्स को एज्यूम कर दिया कि E1 इज़ द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक and E2 is the event that the second card drawn is black. Then probability of E1 is equal to 26 by 52, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 हैं। जब हम ये इवेंट कर चुके हैं तो मींस फर्स्ट कार्ड ब्लैक ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब हमारे पास 25 ब्लैक कार्ड रह गए और टोटल कार्ड्स कितने रह गए 51। इसलिए probability of E2 given E1 has happened, E2 E1 का मतलब हम कह सकते हैं कि E2, E1 मीन्स E2 given E1 has happened is 25 by 51. So probability of E1 intersection E2 मतलब फर्स्ट भी ब्लैक हो एंड सेकेंड भी ब्लैक हो, तो इसकी probability क्या हो गई, probability of E1 and then probability of E2 given E1. So that is 26 by 52 into 25 by 51, that is 25 by 102. Next one, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Oranges के box को अप्रूव किया जाएगा सेल के लिए अगर उसमें से जो हम 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं वो तीनों के तीनों गुड होंगे, अदरवाइज एक भी अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो उस बॉक्स को अप्रूव नहीं किया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 20 आर out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. एक बॉक्स जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं टोटल और उनमें से 12 गुड कंडीशन में और 3 बैड में कंडीशन में हैं, तो उस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 इवेंट्स हैं कि जो ऑरेंज हम ड्रॉ कर रहे हैं वो गुड कंडीशन में है और दूसरा कि सेकंड ऑरेंज है वो भी गुड है और थर्ड ऑरेंज भी गुड है। क्योंकि 3 ऑरेंजेस हम निकाल रहे हैं तो हमने E1, E2, E3 ये मान लिया है कि तीनों ही ऑरेंजेस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे गुड कंडीशन में है। तो पहला ऑरेंज गुड कंडीशन में निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 12 थे गुड और टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 12 by 15। जब एक हम गुड ऑरेंज निकाल चुके हैं, अब हमारे पास 11 गुड ऑरेंजेस हैं, तो सेकंड ऑरेंज भी गुड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11। अब टोटल ऑरेंज 14 रह गए, तो 11 by 14। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E2 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 10 ऑरेंज गुड रह गए क्योंकि 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 10 और टोटल ऑरेंजेस अब हमारे 13 रह गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2 हैज़ हैपेंड इज 10 by 13। तो हमें तीनों की बॉक्स कब अप्रूव होगा, जब तीनों हमारे इवेंट्स होंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 E2। सो तीनों को आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट वन, a fair coin and unbiased die they are tossed. Let A is the event head appears on the coin and B is the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. एक कॉइन और एक डाइस को टॉस किया गया और A इवेंट है हेड appears on the coin। तो जब हमने इनको टॉस करा तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो होगा, कॉइन जब टॉस करते हैं हेड और टेल आता है, तो हेड के साथ 1 से 6 तक कोई भी डाइस का नंबर आ सकता है, इसी तरह से टेल के साथ भी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो हमारे 12 हो जाएंगे, 2 कॉइन के और 6 डाइस के, तो
2 मल्टीप्लाइड बाय 6. नाउ ए इवेंट हमने मान लिया कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन और बी इवेंट हमने मान लिया 3 अपीयर्स ऑन द डाई. तो ए इवेंट क्या होगा हमारे पास, जितने जिसमें भी हेड आ रहा है वो सब, इसका मतलब H1 से लेकर H6 तक. और बी इवेंट क्या हो जाएगा, H3 और T3, क्योंकि 3 अपीयर्स ऑन द डाई है तो H3 और T3. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, H3. नाउ हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे हम पहले, दैट इज़ 6/12, क्योंकि 6 इवेंट्स हैं ए में, 6 पॉइंट्स हैं ए में और सैम्पल स्पेस में 12. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे हम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12. अब हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल है या नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 इंटू 1/6 1/12 आएगा. इट मीन्स बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट द 2 इवेंट्स दे आर independent. Last question. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A is the event, the number is even, and B is the event, the number is red. Are A and B are independent. एक डाई में 1, 2, 3 को हमने रेड कलर से मार्क करा और 4, 5, 6 को ग्रीन कलर में, और उसको टॉस करा. ए इवेंट हमने माना कि नंबर इवन है और बी इवेंट माना कि नंबर रेड है. तो हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो इवन नंबर्स इसमें हमारे पास जो हैं वो 2, 4 और 6 हैं, और जो रेड कलर में नंबर्स हैं वो हैं 1, 2, 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 3 बाय सैम्पल स्पेस में 6 पॉइंट्स हैं तो 3/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 3/6 हो जाएगी. और ए इंटरसेक्शन बी मतलब रेड भी हो और इवन भी हो तो वो केवल एक ही एलिमेंट है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, हाफ इंटू हाफ, दैट इज़ 1/4. जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर नॉट independent events. That's all for today. Thank you.